Hello, good morning students. Today we will see the part that is human reproduction. It is chapter 3. Last time we have studied about the reproductive parts of female and male human body. Okay, today we will see gametogenesis. It is the next part. So what is gametogenesis? Gametogenesis is the production of gametes from the primary sex organs. So what are the primary sex organs that we have studied in the previous lectures? ठीक है. So sex organs are mainly testes in male and ovary in female. So from these primary sex organs, sperm and ova are released. ठीक है. So these it is the process that is known as gametogenesis. So it is divided into two parts, that is spermatogenesis and oogenesis. So what is spermatogenesis? It is the process by which the sperm is formed, ठीक है, and it is formed in testes, ठीक है. तो spermatogenesis is the part that is performed in the male human body, ठीक है, and oogenesis is the process in which the egg is formed, egg or ovum is formed, ठीक है. So it is performed in the female human body. So let's start with spermatogenesis, ठीक है. The process of spermatogenesis starts at the puberty age. So puberty age is the age in which the boys reach to the age of 12 to 14 years, ठीक है, in which the sperm get the spermatogenesis process mainly starts. Okay, so we will now see how the spermatogenesis process proceeds, ठीक है. Firstly, the spermatogonia multiply by the mitosis division to increase in number. Okay, and these are present in the inner wall of seminiferous tubules. Seminiferous tubules is present in the testis. Okay, as you have seen in the previous lecture. Okay, then each spermatogonium is a diploid cell. What is diploid? It is the 2n number of cell, ठीक है, जिसमें हमारे 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं. Okay, then some of that spermatogonium called as the primary spermatocytes, these divide meiotically to form the two equal haploid cells known as the secondary spermatocytes. They contain the 23 number of chromosomes. Okay, then further these primary spermatocytes divided into secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes produce 4 equal haploid cells after they undergo second meiotic division. यहाँ पर हमारी फर्स्ट meiotic division हो रही थी, यहाँ second meiotic division start हो जाती है जो haploid की ही होती है, ठीक है, and they form the spermatids which also contains the 23 number of chromosomes, ठीक है. These spermatids undergo the spermiogenesis to form the spermatozoa. ये आपका जो spermiogenesis है ये आपका लास्ट स्टेप होता है जिसमें आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म आपका फॉर्म होता है, ठीक है. एंड दीज स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द seminiferous tubules. Okay, they are finally released from the seminiferous tubules by the process of spermiation. ठीक है, स्पर्मिएशन में क्या होता है, हमारे ये बाहर आ जाते हैं seminiferous tubules से. So this is the main process जो आपका spermatogenesis जैसे चलता है. As you have seen in the first step, the spermatogonium which is 2n number diploid number का होता है which contains 46 chromosome mitotically divide करता है into primary spermatocyte, ठीक है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड करता है which also contains the diploid number of cells और इसमें भी आपके 46 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. फर्स्ट आपका जैसे स्टेप था हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, हमने देखा था कि स्पर्मेटोगोनियम कीप ऑन मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है. फिर हमारा ग्रोथ फेज आ गया, ठीक है, सेकंड नंबर पे. देन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स. ये आपके 2 हैप्लॉइड सेल्स है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, हमारे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें n नंबर में हमारे 23 क्रोमोसोम, ये हमारा एक n है, ये हमारा दूसरा n है, ठीक है. तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें दोनों में देखने को मिलेंगे. फर्दर दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड इनटू 4 हमारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं इससे विच इज द मियोसिस 2 पार्ट, ठीक है. आगे फर्दर हमारे स्पर्मेटिड्स भी हमारे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. फर्दर दे फॉर्म द spermatozoa or the sperms by the process of spermiogenesis,
ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। दिस इज द डायग्राम, सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें हमें देखने को मिलेगा दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम एट द लास्ट। आफ्टर स्पर्मेटोगोनियम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड. आफ्टर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड विच इज n in number. ठीक है। After the secondary spermatocyte, the spermatids are formed, and after the spermatids, with the process of spermiogenesis, the spermatozoa are formed. Okay. Then we have जो अभी हमने देखा था कि किस तरह से ये हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। स्पर्मेटोगोनिया हमारे जो होते हैं डिप्लॉयड नंबर के, ठीक है। तो ये हमारे स्पर्म्स बनाते हैं मेनली, ठीक है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पाए जाते हैं। आफ्टर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स मियोटिकली, हमारे क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे क्या हैं, दिस अंडरगो मियोसिस 1 टू फॉर्म द 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। इसमें हमारे फिर क्या होते हैं, ये भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जब ये आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है हैप्लॉइड सेल्स में, दिस कंटेन 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सॉरी, ये हमारा मियोसिस 1 स्टेज है, हाँ, ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था। आफ्टर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स हमारे हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे इसमें भी पाए जाते हैं, जो कि रिजल्ट है किस चीज़ का, मियोसिस 2 का, जिसमें मियोसिस 2 सेल डिवीजन हमारी चलती है, ठीक है। आफ्टर दैट द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस इज प्रोसेस्ड इन विच द स्पर्मेटिड्स मैच्योर टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज स्पर्मिएशन इन विच द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे करके चलता है, ओके। Then these are some of the hormones that affect the spermatogenesis. At the first, mainly the gonadotropin hormone, tropin releasing hormone, it is released from the hypothalamus. By the increased level of the gonadotropin releasing hormone, it stimulates and releases the 2 gonadotropin hormones. What are the 2 gonadotropin hormones? These are follicle stimulating hormone and the ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो FSH एंड LH जो हमारे कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके LH और FSH आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। सो व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स and stimulate the release of some factors that help in the process of spermiogenesis. तो ये मेनली किसके ऊपर काम करता है, सर्टोली सेल्स में। जो सर्टोली सेल्स हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं उनमें काम करता है, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं हमारे मेनली ये, ठीक है। और ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका हेल्प करता है। देन सेकेंड इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारे लेडिक सेल्स पे काम करता है। एंड इट ऑल्सो सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस हमारे इसमें से रिलीज होते हैं जो आपके किस में हेल्प करते हैं, आगे फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि आपका पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट में आपका स्पर्म बनता है, ठीक है। तो उसका ही एक प्रोडक्ट है स्पर्म, ठीक है, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। गैमेट जो हम गैमेट बना स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो हमारा ये 4 भागों में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड टेल, ठीक है। द हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ दिस एक्रोसोम, ठीक है। और ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये पूरी बॉडी में इसके कवर्ड रहता है। एक्रोसोम के बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमम मटेरियल, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम का मटेरियल हमें देखने को मिलेगा। एक्रोसोम में हमें डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो एग के मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन को ये तोड़ने में हेल्प करता है, डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज नेक, और नेक के ये फिर उसके बाद आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं बहुत सारे, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलो फर्दर हम देखते हैं कि हमारे स्पर्म में क्या क्या देखने को मिलता है। इट कंटेन्स हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, जैसे मैंने बताया था। एंड द होल बॉडी इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो उसकी कवरिंग होती है। द हेड पोर्शन ऑफ द स्पर्म कंटेन्स अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब जो उसका हेड होता है उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड कंटेन्स एन एक्रोसोम। ऊपर की तरफ हमें एक्रोसोम देखने को मिला था, मैंने बताया था। एक्रोसोम में हमारा क्या है, ये एक्रोसोम था हमारा, देखिए
ये अब इसमें हमारे यहाँ पर क्या भरा होता है, इट इज फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डिजोल्विंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एग सेल। जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है तो क्या करता है, ये वहाँ पर डिजोल्व कर देता है मेम्ब्रेन को, जो एग सेल की बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको डिजोल्व करता है ताकि अंदर एंट्री कर सके, ठीक है। देन द सेकेंड पार्ट इज द मिडिल पीस। मिडिल पीस में हमारे पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इट कंटेन्स द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, ठीक है, वो मोटिलिटी में हेल्प करता है। सो ड्यूरिंग द इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज। बहुत सारे मिलियन स्पर्म्स हमारे रिलीज होते हैं ड्यूरिंग वन इजैकुलेशन, ठीक है। एटलीस्ट द 60% ऑफ देम शुड बी इन नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है ना, कम से कम 60% उसमें नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और नियर अबाउट 40% शुड हैव मोटिलिटी। मोटिलिटी किसकी वजह से होती है, उसके टेल के कारण, ठीक है। देन व्हाट इज सीमेन? इट इज अ मिल्की वाइट ऑर्गेनिक फ्लूइड दैट इज रिलीज्ड बाय द पेनिस ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। जो पेनिस से हमारा सीमेन रिलीज होता है, जो मिल्की वाइट सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज सीमेन विच कंटेन्स द नंबर ऑफ स्पर्म्स। बहुत सारे स्पर्म्स हमें देखने को उसमें मिलेंगे, ठीक है। और ये स्पर्म्स कहाँ से हमारे रिलीज होते हैं? दीज आर रिलीज बाय द एक्सेसरी डक्ट्स एंड द एक्सेसरीज ग्लैंड्स, ठीक है। इनसे हमारे ये स्पर्म्स रिलीज होते हैं। द वेरियस एक्सेसरी ग्लैंड्स आर एपिडिडेमिस, वास डेफरेंस, सेमनिफेरस वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव में पार्ट में पाए जाते हैं। सो द वेरियस हार्मोन जैसे एंड्रोजन्स, इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरीज डक्ट एंड द ग्लैंड्स, ओके। सो वो हमारा पार्ट था सारा स्पर्मेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है oogenesis का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट दैट इज ओवम, इट इज नोन एज oogenesis। इसमें हमारा ओवम या फिर एग सेल हमारा इसमें बनता है, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज। एम्ब्रॉयनिक यानी कि जब बेबी बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स और oogonia आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। सो द मेन प्रोसेस ऑफ oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग, ठीक है। अब पूरा प्रोसेस ओवरव्यू देखते हैं कि क्या मेनली होता है हमारा इस प्रोसेस में। द oogonia फॉर्म द प्राइमरी oocyte। पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, जो oogonia होते हैं वो प्राइमरी oocytes फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड इट इज मेनली द मियोसिस डिवीजन, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोफेज 1 उसका स्टार्ट होता है। फिर हमारा सेकंड में आता है ईच प्राइमरी oocytes गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। अब एक प्राइमरी oocyte है, उसके किनारे एक लेयर बन जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। A large number of primary follicles get generated between the birth and puberty, ठीक है। बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में बहुत ज़्यादा हमारे क्या आते हैं, प्राइमरी नंबर ऑफ फॉलिकल्स बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत बनते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते देर आर नियर अबाउट 60 to 80,000 ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इन दी ओवरी, ठीक है। जो प्यूबर्टी एज आती है नियर अबाउट 12, ठीक है, गर्ल्स में 12 तक आ जाती है नियर अबाउट, तो उस समय तक हमारे पास क्या होता है, 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे ओवरी में बने हुए होते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। हमने देखा था ग्रेनुलोसा सेल्स हमारे किसके, प्राइमरी oocyte के किनारे आते रहते हैं। अब और उसके किनारे ग्रेनुलोसा सेल्स बनते रहते हैं। दे नाउ फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल, और वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल गिव राइज टू द टर्शियरी फॉलिकल। जब उसके किनारे और ज़्यादा फिर हमारे ये सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड। उसके बीच में एक फ्लूइड भर जाता है जो कि एक कैविटी में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। एंड दिस थीका इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 लेयर्स, इनर थीका एंड आउटर थीका, ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाता है। द प्राइमरी oocytes ग्रो इन साइज। हमने देखा था प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी बना है ना, फिर टर्शियरी बना फॉलिकल उससे। तो प्राइमरी oocyte हमारा बढ़ता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। सेकेंडरी oocyte हमारा लार्ज होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी छोटी होती है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे जब, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, देखिए हमारा oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना जो कि लार्ज इन नंबर है, लार्ज इन साइज है, और ये छोटा सा है जो पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो हम देख रहे थे सेकेंडरी oocyte रिटेन्स मच ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, के तभी बड़ा हो जाता है ये, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भर जाता है। द टर्शियरी फॉलिकल
चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल। हमने यहाँ देखा था टर्शियरी फॉलिकल बना, तो टर्शियरी फॉलिकल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। द सेकेंडरी oocyte जो हमारे यहाँ ऊपर बनता है फॉर्म्स अ न्यू लेयर कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा अराउंड इट। उसके किनारे किनारे हमारा एक लेयर बन जाती है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा, ठीक है। एंड द ग्राफियन फॉलिकल जो हमारा बना था नाउ रप्चर्स, टूट जाता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम, ठीक है। यहाँ से हमारा ओवम रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में हमारा ओवम बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिखाया है ओवरी का सेक्शनल व्यू, जिसमें आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी फॉलिकल एट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनता है, उसके किनारे हमारे लेयर बनने स्टार्ट हो जाती है। ये लेयर हमारी देखो यहाँ पर आके थिक हो जाती है ना, जिसमें हमारी सेकेंडरी फॉलिकल में हमारी ये आके थिक हो जाती है। टर्शियरी फॉलिकल में हमने देखा था कि टर्शियरी फॉलिकल में आते आते ये और लेयर थिक होने के बाद बीच में हमारे कैविटी बना देता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं हम एंट्रम, ठीक है। एंड फर्दर इट फॉर्म्स ग्राफियन फॉलिक्यूल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। ग्राफियन फॉलिकल काफ़ी मैच्योर होने के बाद फिर ये रप्चर होने के बाद, टूटने के बाद हमारा ओवम उसमें से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द oogenesis, ठीक है। तो यही हमारा अभी जैसे हमने स्टेप में आगे देखा था, तो हमारा क्या क्या होता है इन द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज oogoनियम डिवाइड्स माइटोटिकली, ठीक है, जिसमें हमारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n नंबर। ये हमारे प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी oocyte ऑल्सो कंटेन्स द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हमारे। फर्दर ये हमारा मियोसिस 1 इसमें स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 1 में हमारा क्या होता है, प्राइमरी oocytes गेट कन्वर्टेड इनटू लार्जर वन दैट इज सेकेंडरी oocyte विच इज अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल, ठीक है, n नंबर ऑफ सेल है। और छोटा वाला हमारा बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा है। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो मेन यहाँ तक हमारा प्रोसेस है किस चीज़ का, हमारा oogenesis का, ठीक है। ये फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवुलेशन तक हमारा मेनली ये स्टेप हमारा फॉलो होता है, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, है ना। अभी तक हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा प्यूबर्टी एज आने पे, प्यूबर्टी एज हमारी मेनली 12 to 14, ठीक है, ह्यूमंस में हमारे 12 to 14 होता है। तो क्रोमोसोम नंबर हमने देखा था, यहाँ पर देखिए दोनों में 46, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पर हमारे पे oogonia था, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन हमारी यहाँ पर चलती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है, यहाँ पर प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन चलता है, जिसमें स्पर्मेटिड्स बनते थे। स्पर्मेटिड्स आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, रिलीज हो जाता है। दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। ये प्रोसेस हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का आगे फॉर्म होता था, ठीक है। और ये हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कि हमारे यहाँ पर 46 हमारे पाए जाते थे। यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स में हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता था। फिर स्पर्मेटिड्स में भी हमारे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते थे, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ oogonia, यू विल सी द oogonia माइटोटिकली डिवाइड होता है आपका प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte आपका फर्दर डिवाइड होता है सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी में, है ना, सॉरी फर्स्ट पोलर बॉडी में, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये यहाँ पर ओवुलेशन स्टेप आता है, जिसमें हमारा ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था जो अब आपको अपनी कॉपीज में करना है। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, डू लेट मी नो, ताकि मैं उसको आगे थोड़ा सा समझा सकूं, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आते हैं तो वो प्लीज़ मेरे को एक बार उसका चाहे पर्सनल मैसेज डालें, चाहे जैसे भी मेरे को कॉल करके, चाहे जैसे भी मेरे को बताने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।